शिट ओ चाय गिर गई। यार, ये मैंने बोला था ना कितना बड़ा कप है ये, मेरे तो दोनों हाथ में भी नहीं आ रहा है। मेरे को थोड़ा पानी पिला दो गाइस। बहुत बोल लिया उन्होंने। भाई कितना कुछ बता दिया। कैन आई कॉल यू मोना? आधे लोग तो मेरा नाम गलत बोलते हैं। क्या वो कैसे प्रोनाउंस होता है? मोनालिसा महापात्रा, बट इवन ब्रांड्स राइट मोनालिसा मोहापात्रा। अरे मत यार, क्या है यार। लास्ट नहीं अपने पास अवेलेबल वोडका शॉट्स। मैं कितना बोलती हूँ। लेट्स कीप इट रियल। या आई एम ऑलवेज रियल। नो बाइंग फॉलोअर्स। चल झूठा। स्टार्ट करने। Welcome to another episode of Influencers Insight. I am your host Aarti, and today we have a very exciting guest with us. Her journey is full of creativity and impact, and she is an Instagram sensation. So hi, welcome Mona. Welcome to our show. It's such a pleasure having you here. Thank you. How are you for feeling calling today? me. So good. Plus चाय है मेरे पास, so it's just too Great. good. Too Great. good. Chai person. Yes. Are you? Yes. Perfect. Big chai person. मैं ज्यादा questions नहीं पूछूंगी क्योंकि ये तुम्हारा show है, so I don't wanna intrude. It's okay. You can. Hi. I would love to answer. Okay, ठीक है. ठीक है. चलो, let's start a bit about your background. हाँ. How you started content creation is a one question, but also a bit about your पहले content creation का पहले का background. Okay. So I come from a Air Force background. Okay. Yeah, my dad used to work for Air Force for as long as I can remember. We've moved cities. Okay. फिर I think 6th standard में I've moved to Delhi, and then yeah, I think since then I had this very loving relationship with Delhi. But जब मैं पहले आई थी यहाँ पे, honestly I cried so much because I was missing my friends. फिर वही था कि कैसे नए दोस्त बनाऊंगी and ये वो. And 11th में I failed. Oh. Yes. Okay. That was तब मुझे ऐसा लग रहा था I think this is the end of the world for me. कौन सा सब्जेक्ट था आपके पास? I was a science student. Okay. मर्जी से लिया था कि जबरदस्त? नहीं, I don't think मर्जी या जबरदस्ती. I got good marks in 10th. तो वही था कि सब लोग ले रहे थे, तो मैंने सोचा कि चल मैं भी ले लेती हूँ. मैं भी ले लूँ. Peer pressure type of thing. So I got it. But then honestly I never understood maths इतना. So I had no idea कि भाई इसको कैसे करना है. So physics में ठीक है जो भी है. And then I cried so much कि मेरी जिंदगी खत्म ये वो. But then of course एक साल हमने फिर जैसे जैसे निकाला. Then मैं पास हुई, 12th भी कर लिया. That was it. School days were done. Honestly I didn't like school at all. Okay. It was the worst phase of my life. Okay. Yeah. So that happened. And funnily I did well in 12th. कर लिया मैंने वो. And then I got into Gargi College. Okay. Best time of my life. Okay. 3 years. Okay. Best teachers. The woman I am right now, I think it is all because of those teachers. इतने अच्छे से हमें पढ़ाते थे. And the kind of warmth I got from the fraternity, I still remember. तभी भी मैं थोड़ा ऐसे ड्रेसअप होके जाती थी कॉलेज. And ज़ील फैशन की शुरू से आप में? हाँ. स्टार्टिंग से सरोजनी के कपड़े, you know? या तब तो पैसे नहीं होते थे. एवरी गर्ल लव सरोजनी के कपड़े. पैसे नहीं होते थे तब. So I used to go to Sarojini, buy clothes and style them. Of course, DU में तो स्टाइल करना पड़ेगा ना. थोड़ा सा स्टाइलिंग कल्चर I feel. Yeah. तो वो वहाँ से शुरू हुआ स्टाइलिंग का भी धीरे धीरे. And मेरी टीचर्स भी मुझे बोलती थी कि I think that you will go into fashion. I will really like the way you dress up. तो वो बीच में थोड़े से competitions भी होते थे तो मैं जीत जाती थी. हाँ, it's a good, like it was a good start. I didn't know that I will do it. It was a sign that you can get into yeah, fashion maybe world. it was a whisper कि Yeah. ठीक है, maybe this is something that you are meant for. Yeah. Now that I'm talking about it, I feel like ये बहुत ही ऐसे एक वो ऐसा full Universe was playing. Yeah. True. And बहुत सारी चीजें की है मैंने कॉलेज में which kind of shaped my confidence because I was always an introvert kid. मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाती थी. Now तो it's like तुम मुझे कहीं बिठा दो, I can talk to people. I've changed quite a lot. Is it because you are in industry from quite a long time now? Yes, I would. I would think that. But लोगों से मिलके भी और पता लग जाता है कि आपको बात करना आना चाहिए. Okay. So that's what I feel. क्योंकि इंडस्ट्री में जब तक आपको बात करना नहीं आएगा, you can't sustain. It's industry में भी ऐसा है? Yeah, you will lose out.
It's Okay. everywhere. But it's with like when you go for socializing, वहाँ पे आपको आना चाहिए ना? How you? Like people were really nice to me, to be honest. Okay, Because I in used to dress college. well. Yeah. Even my teachers. And बहुत सारी सोसाइटीज भी होती थी. दिल्ली यूनिवर्सिटी की ये चीज़ इतनी अच्छी है ना कि स्पेशली मेरे कॉलेज की तो थी that we had these amazing societies. So I was a part of photography society. And I've traveled quite a lot for it as well. We've moved to IIT Bombay, We've traveled to IIT Bombay and then IIT ये एक और कानपुर में जो है वहाँ पे भी कानपुर में तो वहाँ पे हमें लेके जाते थे for fests and all. And yeah, I started doing photography out of nowhere. It was just a normal thing that I used to do. And then जो मेरे दोस्त बने उस वही ग्रुप के साथ, they started telling me कि मोना, we really like the way your eyes look. Can we take pictures of you? Oh wow. उस टाइम पे ना Instagram इतना नहीं था. कौन से ईयर की बात है ये? I think 2012. I'm very bad with dates यार. Okay. 2012 back in time. फोटोग्राफी करती थी मैं तब. Oh wow. ठीक है, तो उन लोगों ने मुझे बोला कि can we take your pictures? I was like हाँ क्यों नहीं, because I love being in front of the camera. Yeah. And that was my this thing कि ठीक है यार ये लोग मेरी pictures खींचेंगे and put it on Facebook. Yeah. तब Facebook was a big deal. Yeah. Groups trending. Trending. बहुत अच्छा वो एक social media platform था. So they used to take my pictures and upload it. And I don't know, it just, I think तब से ही मेरा थोड़ा सा वो वायरलिटी वाला चीज आना शुरू हो गया था क्योंकि फेसबुक से ही लोग मुझे पहचानने लग गए थे. Oh wow. Yeah, and I used to get modeling gigs through my pictures that I used to upload on Facebook. Oh wow. Yeah. You also did modeling? Yes, I did. Few for Jaipur.com. I don't know if you know it. It's a very big brand. Yeah. But they paid me really less. तब तो मैं कॉलेज स्टूडेंट थी तो ठीक है, whatever. That's when I realized कि नहीं, मॉडलिंग तो मेरे लिए नहीं है क्योंकि पैसा बहुत कम है इधर. आपको ऐसा लगता था पैसा कम है, but you were liking the thing. I loved being in front of the camera. I loved getting my pictures done. मुझे styling वगैरह बहुत अच्छा लगता था मुझे वो चीज. Zeal turn into passion and then future. हाँ, मतलब it was just too much fun. लेकिन वो money aspect मेरा तभी भी था कि नहीं, if it is not giving me enough, then I can't pursue it. बस मेरी हाइट भी इतनी लंबी नहीं थी कि मैं रनवे करती या कुछ. तो फिर मैं सोचा नहीं ये तो मेरे लिए नहीं है. देन कॉलेज हो गया. कॉलेज के बाद आई डिड माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन डिजाइन. दैट्स फ्रॉम अनदर कॉलेज. ओके. एंड अगेन वही मजा तो आता ही था बट शूज बनाते थे वहां पे, कपड़ों का नहीं था. ओके. या यू वर इनटू फुटवेयर डिजाइनिंग कैड कैम प्रॉपर. एंड अगेन मेरे को अच्छा लगता था वो सब डिजाइन एंड ऑल दैट. तो अगेन वही कि फर्स्ट आ रही हूँ ये वो जो भी. आई एम नॉट बोस्टिंग बट लाइक आई हैव बीन अ गुड किड. आई हैव बीन अ स्कॉलर. अगर मुझे कोई चीज करनी है तो ठीक से करूंगी वरना नहीं करना. इट्स जस्ट दैट इन मी. तो वो हुआ 2 साल वहां पे मैंने किए. बट दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज. आई डिडंट नो कि आफ्टर कॉलेज आई हैव टू डू अ जॉब. how dumb of me to not know that. So you were from a middle class family or upper I come from a upper class. तो पैसों का इतना स्ट्रेस नहीं होगा ना घर पे? पैसों का कोई स्ट्रेस नहीं था यार. मेरे को पैसे का क्योंकि पापा वाज डूइंग गुड एंड वी हैड आवर ओन हाउस, तो रेंट सब आ रहा था. ओके. लाइक इट वाज गुड. मतलब हम बिल्कुल ही ऐसे लोअर से तो नहीं थे बट वी हैड अ गुड अपब्रिंगिंग. कभी भी किसी चीज की कमी नहीं हुई है. नहीं, कभी कोई कमी नहीं हुई. कभी पेरेंट्स से मतलब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं. कुछ भी चाहिए होता था वी यूज्ड टू गेट इट. बट ऐसे रिचेस्ट से तो मैं नहीं हूँ. ओके. बट वो जब ये जॉब वाला आया मुझे लगा कि अरे ये क्या है अब. दिस आई डोंट वांट टू डू बिकॉज ये नहीं कर सकती मैं. मेरे लिए अब मैं तभी भी नहीं समझ रहा था मुझे करना क्या है. तब क्लियर ही नहीं थी कि जॉब भी क्या करूं. क्या ही करूं. फिर मेरे को मेरे कॉलेज वालों ने प्लेसमेंट्स में बिठाया. अब फिर वही है स्कॉलर नैना. तो उसको तो चाहिए कि बिल्कुल अगर करना है तो बड़ा करना है वरना करना ही नहीं है. बाटा आई थी भाई. ओह वाओ. ठीक है. एंड देन आई कुडंट क्रैक द इंटरव्यू because of question. I still remember उन्होंने मुझसे पूछा था पैंटोन कलर ऑफ द ईयर क्या है इस सीजन. दैट वाज मार्सेला रेड. देखो अभी भी मुझे याद है वो चीज. उस टाइम याद नहीं आई. मुझे पता ही नहीं था कि कुछ होता है. अच्छा. ओके. because I was not too much into like bookish fashion back then. Now I know a lot.
तो वो नहीं पता था, सो उन्होंने मुझे बताया कि You're not selected. I howled. मैं तब मेट्रो में जाती थी एंड इट वाज 4 आवर्स का बैक एंड फोर्थ का ट्रैवलिंग. Yeah. तो अभी मैंने एक वीडियो में भी मैंने बोला है कि मैं नोएडा जाती थी दिल्ली से और 4 आवर्स. लोग बहुत ज्यादा मेरी हंसी उड़ा रहे हैं कि 4 घंटे कैसे. गाइस आई मेंट आना जाना चाहिए. हाँ, एक Not 4 जाना घंटे जाना. जाना चाहिए. Yeah. Dude, it was just too much for Common me. sense. Common sense. तो वो हुआ वहाँ पे and yeah, I just cried so much and then like मेरी लाइफ खत्म. मेरे को फिर वही क्राइसिस की नहीं मेरी लाइफ Yeah. खत्म, मैं कुछ नहीं कर सकती. But then I joined another company. Which company? Okay, Carlton London I joined. Okay. So sir was really nice. जो मेरे boss थे, he was really good. You were working there as in? As a junior visual merchandiser. But Okay. नहीं, okay. So मुझे बोला गया था that we want you as a junior designer. Okay. ठीक है? That's why I agreed to the job. Okay. But जब मैं गई तो वो roles change हो गए. Okay. तो बाकी ऑफिस के काम भी होते थे जो एक्सेल पे बैठ के करना पड़ता था. वो तो मुझे नहीं मजा आ रहा था. तो मैंने सर को जाके बोल दिया कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा है. इंटर्न से तो सभी कराते हैं. बट आई वाज नॉट एन इंटर्न. मैं फिर भी जूनियर लेवल पे थे. हाँ हाँ. वहाँ पे. तो आई अंडरस्टूड कि नहीं, दिस इज नॉट हैपनिंग एंड आई जस्ट आई थिंक कॉल्ड माय डैड. 2 महीने मैंने वहाँ पे किया था, 2 या 3 महीने, आई कांट रिमेम्बर. आई कॉल्ड हिम एंड आई सेड आई कांट डू दिस जॉब, आई एम लीविंग. Okay. मैंने पापा को कॉल करके बोला. माय डैड वाज लाइक क्या हुआ, लाइक टेल मी, इज समथिंग रॉन्ग. Something wrong. Yeah. मैंने कहा नहीं मुझे करना ही नहीं है, आई एम कमिंग होम. Okay. सो तब फनीली मेरी ब्लॉगिंग करियर स्टार्ट ही कार्ल्टन लंदन से हुई. ब्लॉग करना चालू कर दिया ब्लॉगिंग आपने. मैंने शुरू करा था. आई हैड अ फ्रेंड. Was it a thing? Yes, it was. Like all the I think OGs I would want to call Yeah. it, या फिर जो भी बहुत पहले से कर बहुत रहे पहले से कर रहे हैं. Blogging was how we used to get paid. हैं. Okay. Yeah, Back then? Back then. Oh my God. ब्लॉगिंग एंड इंस्टाग्राम पे फोटोज वगैरह डाल के ही, पिक्चर्स वगैरह डाल के ही हमें पैसे वैसे मिलते थे. अभी तो वीडियोस का अभी आया है. Yeah. After TikTok got banned. या उसके बाद ही हुआ है वो Yeah. सब. तो ये कैसे हुआ कि मैं एक प्रोजेक्ट बना रही थी कार्ल्टन में फॉर जूनियर किड्स. ठंडियों का कुछ मैं बना रही थी. तो एक ऐसे केबल नेट करके एक टर्म आया, फिर ग्रे आया, ये करके. तो दिस इज सो फनी. आई हैड अ वेबसाइट कॉल्ड thegreyhalfway.com. या इट जस्ट हैपेंड एंड वही जो मेरा दोस्त था उसने मुझे बताया कि मोना ऐसा कुछ होता है, बाहर की लड़कियां फोटोज डालती हैं, तुम ऑलरेडी मॉडलिंग करती हो, पिक्चर्स हैं तुम्हारे पास, यू शुड पुट दीज पिक्चर्स ऑन योर वेबसाइट. एक वेबसाइट बना लो एंड देन स्टार्ट पुटिंग आउट पिक्चर्स एंड ऑल ऑफ दैट. Okay. आई सेड भाई ये क्या है, चलो देखते हैं इसको भी करके. सो आई ट्राइड एंड अगेन फेसबुक वाज रियली गुड बैक देन. इंस्टाग्राम का इतना लोगों को पता नहीं पता था. हाँ. नहीं पता था. फोटोग्राफी वाला सामान मैं डाल रही थी अपने इंस्टा पे, बस ऐसे ही रैंडमली कुछ भी डाल दिया. खींचा तो डाल दिया, मॉडलिंग का कुछ आया तो डाल दिया, इस तरीके का था. बट देन व्हेन दिस गाय टोल्ड मी, जो मेरा दोस्त था वहां पे, आई टुक इट सीरियसली बिकॉज ही सेड ये वाली जो चीज ब्लॉगिंग है ना, इसमें लड़कियों को पैसे भी मिलते हैं. Oh. भाई ये क्या चीज है? आई डोंट नो अबाउट दिस. What was the first thing you vlogged about? Vlogged about? It was again a collection from, no, not a collection. So again वही photography से related है. पूरा vlog किया आपने? Blog. अच्छा, blog. Writing. Blogging, Okay, writing. Blogging. and putting out pictures. Okay. I thought vlogging. No. Blog. Blogging. Okay. Blog posts होते थे proper. Okay. मेरी एक दोस्त है, उसकी photography workshop हो रही थी. Okay. She asked me कि can you be my model? Okay. And वहाँ पे 20 photographer आए हुए थे. ऐसा हाँ कर लेते हैं. She didn't pay me or anything, but I got pictures. Okay. That was my first blog post. येलो कलर का ड्रेस पहना था मैंने, अभी भी होंगी. इतनी क्यूट पिक्चर्स आई थी मेरी. एंड आई पुट इट आउट एंड देन आई अपलोडेड इट ऑन फेसबुक एज वेल. सो पीपल अगेन स्टार्टेड नोटिसिंग कि भाई कुछ तो कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है. तो वहां से मेरी रीच आने लगी. एक दिन में आई गॉट 1000 व्यूज ऑन दैट ब्लॉग. Wow. इट इज अ बिग डील. Yeah. कोई नहीं जानता था. Absolutely. And I was like, oh my god, ये क्या होगा, मैं तो फेमस हो गई. ऐसे मुझे लगने लगा. But yeah, cut to then I again quit the job. Sir also got to know about this thing that I do blogging. Okay.
तो जब मैं निकल रही थी वहां से तो ही सेड कि मोना आई नो दैट यू नो यू आर लीविंग बट यू आर मेंट फॉर बिग थिंग्स. Oh wow. मुझे तो लगा था मुझे निकाल रहे हैं और ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं, बट नाउ दैट आई सी व्हाट आई एम डूइंग, Yeah. आई थिंक एवरी पर्सन दैट यू मीट इन लाइफ वो कुछ ना कुछ तो होता है जो आपको पुश करता है थोड़ा सा और आगे करने की. तब आपको लगता है कि अरे मेरी तो लाइफ खत्म हो गई यहाँ पे, अब मेरे को तो सर निकाल रहे हैं चलो ऐसे ऐसे करके. बट या आई थिंक दैट वाज समथिंग. तब तो मुझे नहीं समझ आ रहा था. नाउ दैट आई सी इट, इट हैपेंड फॉर अ गुड रीजन. Yeah. कि मुझे Everything अच्छा happens नहीं for a लग रहा good था, reason. मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, शायद उनको भी नहीं समझ आ रहा होगा जो भी है. बट देन ही टोल्ड मी कि तुम ना फ्रीलांस कर लो. मतलब ही स्टिल लव मी लाइक लव माय वर्क सो मच दैट ही सेड तुम हमारे साथ फ्रीलांस कर लो, हमारा सोशल मीडिया देख लो. Okay. बट वो फिर वर्कआउट नहीं किया क्योंकि पैसे उन्होंने फिर कम कम थे. कर दिए थे और भी कम कर दिए थे जो मुझे मिल रहे थे. तो फिर आई हैड टू एनीवेज क्विट द जॉब. फिर अगेन आई स्टार्टेड वर्किंग समवेयर. समबडी रीच्ड आउट टू मी फ्रॉम लिंक्डइन. 30,000 रुपए दे रहे थे मेरे को पर महीने. ओ आई वाज लाइक सो हैप्पी. अब तो मैं फुल ऑन लाइक ऐसे खुद के कपड़े ऐसे ज़ारा वाला से खरीदूंगी. तब तो चस्का तो बहुत था ना कि अच्छे कपड़े पहनने हैं एंड ऑल दैट. लाइक Live life fullest. या पैसे आते नहीं थे कि खर्च हो जाते थे. वो तो अभी भी होते हैं खैर. बट तब you know that thing happened, but again the job was really bad. तो आप तो शुरू से ही जॉब पर्सन हो ही नहीं. नहीं हूँ, मैं नहीं कर पाई. मैंने ट्राई किया क्योंकि मुझे पैसों की नीड थी because I was young and I wanted to make my own money, but I think that was just not for me. and मैंने जहाँ पे ये नेक्स्ट भी ज्वाइन किया था वो एक वेपिंग डिवाइस की कंपनी थी. like I did odd jobs. Oh my odd jobs I God. did. हाँ odd jobs, बहुत odd jobs किए मैंने बहुत लोगों का फोटोशूट भी कराया है. Oh यार बहुत God. कुछ किया है मैंने. फोटोग्राफी का भी मेरे को आता भी नहीं होता होगा ना तो मैं बोलती हाँ मैं कर दूंगी. लाइक आई यूज्ड टू बी दैट कि नहीं पैसे मिलेंगे ना तो आई विल डू इट. सो आई यूज्ड टू टेल पीपल कि आप बोलो ना क्या काम कराना है, आई विल गेट इट डन. बिकॉज आई यूज्ड टू नो फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स के बहुत कॉन्टैक्ट्स मेरे पास अभी भी है. तो आई यूज्ड टू गेट इट डन. वही थोड़ा बहुत ऐसे जो भी 5-10 हज़ार में वी कैन गेट इट डन. बट हाँ ये वाला हुआ. फिर अगेन ब्रो लाइक दिस इज सो वियर्ड नाउ दैट आई रिमेम्बर. एक वो होती थी यूट्यूब की एक चैनल. माय हिंदी इज रियली बैड गाइस, बंगाली. सो एक यूट्यूब का चैनल होता था, सॉर्टेड करके नाम था. सो अगेन दे सॉ मी कि यू नो आई एम लुकिंग फॉर जॉब. लिंक्डइन से ही शायद कुछ हुआ था. मुझे जॉब्स का भी इतना कुछ पता नहीं है बट शायद मैंने कुछ लिखा होगा. तो दे रीच्ड आउट, दे सेड वी विल गिव यू 30,000 and they knew that I'm blogging. उनको उन्होंने फोटोज दी तो they just needed a nice face for their videos. अब मुझे पता नहीं था कि वीडियो का काम है मेरा. वीडियो बनवानी है खुद एज अ मॉडल. Vox Pop, do you remember? There was a thing called Vox Pop. No. So Vox Pop करके एक चीज होती थी जहाँ पे we used to go out. Not me, like you had to go out and talk to people. अभी नहीं पूछते हैं कि देख समझ गए. हाँ. Vox Popping basically. Okay, Vox Popping. इनका चैनल होता था सॉर्टेड करके. सो दे वांटेड मी टू डू दिस. भाई मेरी तो फट गई. ये तो मुझे नहीं आता, ये मैं कैसे करूंगी. सो आई लाइक तुमने तो मुझे सिर्फ स्टाइलिंग बोला था. स्टाइलिंग किसको करूँ, और सारे लड़के थे, मैं अकेली लड़की थी. एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड नाउ व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू हियर. सो ही मेरा जो वही था जो बॉस था वो कहता है यार यही काम तो मुझे यही करना है. सो सी मुझे यूनिवर्स सबसे साइन दे रहा है कि बहन तू वीडियो बनाओ. तो वीडियो बना. But 1 month down the line, I told him, listen, dude, I can't do this. Undo it. Again That dropped. was my last job. Okay, last Yeah, वो वीडियो मेरे से हुई नहीं. I think वो फिर बाद में TBF ने खरीद ली वो वाली वो चैनल. हाँ. Okay. तो yeah, that's what I know of. I'm not sure about it. And yeah, अब तो वो मेरा दोस्त ही बन गया जो मेरा बॉस था. He's moved, obviously. तो that happened. वही ब्लॉगिंग चल रहा था फिर. एंड जितने भी हम लोग क्रिएटर्स थे तब सिर्फ ब्लॉग्स करते थे, पिक्चर्स खिंचवाते थे एंड पोस्ट करते थे. उसके हमें पैसे मिलते थे. इवेंट्स में आते थे, पैसे मिलते थे. इवेंट्स में लिटरली दे यूज्ड टू आस्क अस एंड गिव अस पेमेंट टू पुट दोस पिक्चर्स आउट. नाउ तो इट्स मोस्टली लाइक नॉन पेड. या नॉन पेड. सो दैट हैपेंड. फिर कट टू हुआ यार, ये सब हुआ. फिर कोविड आया. देन लाइक आई स्टार्टेड वीडियोस. कोविड में यू स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस. उससे पहले टिकटॉक पे भी नहीं बनाते थे आप?
funnily, yes, I did. They reached out to me. I was on a retainer with them. Hmm. TikTok and Moj करके एक platform था. हाँ. Oh नहीं, उससे भी पहले Pinterest. Okay. Yeah, अभी Pinterest came to me saying that we need you to put out like these many content every month. Pinterest वाले जानते थे मुझे कि मैं uploads करती थी वहाँ पे as a creator करती थी. That was on a paid basis. Oh wow. So they asked me to put out videos on Pinterest. क्योंकि तब मैं छोटी ही मतलब नॉट छोटी बट लाइक आई वाज ऑन अ एवरेज क्रिएटर. Okay. मजे के लिए करती थी मैं ये काम. मेरे को कितने फॉलोअर्स कितने? 200k on Instagram. एवरेज छोटी फॉलोअर 200k. टू बी ऑनेस्ट इट वाज नॉट कि मुझे इससे मतलब मेरे को ऐसे बहुत ही फटना है या फिर वायरल. मेरे को नहीं था कभी भी ये. आपको आइडिया नहीं था? नहीं मुझे होना ही नहीं था. Okay. आई वाज गुड बीइंग जस्ट एग्जिस्टिंग. Oh. Yeah. Okay. I've always like कि हाँ ठीक है like I'm going to the events, I'm getting paid, मेरा monthly चल रहा है. बस मंथली चलना चाहिए. Monthly भी नहीं चला. If I'm getting some money and it's going good, I was okay with it. To be honest, I never wanted कि अरे भाई मैं तो ऐसे बड़ी creator बनूंगी यार. कभी नहीं था मेरे को वो. Okay. It was never that. It happened after like I started getting viral. कि When did you started getting viral? So okay, so this happened. This Yeah. 200k bit whatever. ये Pinterest वाला जब शुरू हुआ तो वीडियोस को जबरदस्ती मुझे बनाना पड़ा ना. जबरदस्ती. So वो मैंने किया and but these guys are amazing. I love Pinterest team. अभी भी उनके कांटेक्ट में मैं हूँ. They are just so good. I love that team so much. So of course they gave me the first push. Even if now that I meet people, they know me more from Pinterest rather than any other platform. Yes. Because मेरी Pinterest पे वीडियोस आते आती हैं. रहती है और Pinterest एक ऐसा प्लेटफॉर्म है wherein जो वीडियोस है वो forever चलते ही जाएगा. 100% because जो भी लड़की को कुछ इंस्पिरेशन चाहिए Pinterest ही खोलता है. Yeah, हर लड़की a lot of my जो भी मुझे फॉलो करते हैं या जो भी मेरा काम देखते हैं they know me mostly from Pinterest. Yeah, and then maybe like Instagram or YouTube or other platform, but I'm on every platform. वो तो चलो अलग बात है. लेकिन Pinterest हुआ. Pinterest के बाद I got Moj also. Again on paid basis. तो जबरदस्ती वीडियो बनाना पड़ रहा था मुझे. And I used to put random videos. बहुत कुछ भी ऐसे आके खड़ी हो गई. Like related to fashion but ना? हाँ related to fashion. और मुझे नहीं आता था honestly. I was too conscious to be in front of a video. Pictures में I was very good. But video में मुझे लगता था यार मैं अच्छी नहीं लगूंगी. Okay. Yeah, I had that. I don't know. I had that insecurity about myself that I don't talk well. या फिर I had that fear of that you don't act well. Yeah, I तो cannot act. मेरे शक्ल पे आ जाता है. Oh. I can't act. But मेरे को बहुत वो लगता था कि shameful लगता था कि मैं अच्छी नहीं दिखूंगी. कौन ही देखेगा मुझे? And all that. And my ex also used to tell me, तेरी वीडियो कौन देखेगा? Yeah. That was a thing as well. Red flag. Yeah, very very much so. So वो हुआ and then but my mom and my parents, oh my god, they supported me like anything. मेरा भाई कहता था नहीं दीदी तू कर सकती है, तू कर. My mama was also like you should do long format videos. Why aren't you doing it? मेरी मम बहुत बोलती थी but मैंने किया ही नहीं. Wow. ये वाला हुआ फिर. Pinterest हो गया, Moj हो गया and TikTok. So they hired me. I started TikTok also they hired you? Yeah, they hired me. Okay. They hired me क्योंकि उन्होंने देखा ना मैं videos सब पे बना रहे हो. हाँ. Plus ये होता था Moj वाले का भी एक contract ये था कि I had to do like 2 videos उनके लोगों के साथ on Instagram. Okay. Which is something you should not do. Promoting one platform or another. जो लोगो है वो नहीं करना चाहिए. तब तो और तब क्योंकि मैं वो same content reel में भी डाल रही थी. And reel तो था ही नहीं तब. नहीं टिकटॉक बंद हुआ ना जैसे तब आया ना रील. मतलब मैं आईजीटीवी पे डाल रही थी थोड़ा नॉट टू मच. तो आईजीटीवी को कट करके मैं उनको तो यही कंटेंट दे रही थी. अच्छा. Pinterest वालों को और इनको मैं आईजीटीवी काट के वीडियो छोटे बना के दे रही थी. तो वही था कि भाई बना तो रही हूँ बट मेरे को ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे इससे वायरल होना है ऐसा कुछ. या फिर वायरल तो आपको कभी होना ही नहीं था. मेरे को नहीं होना था. मेरे को पता क्यों नहीं होना था. आई वाज लाइक ठीक है पैसे आ रहे हैं क्या ही है, मैं अपनी लाइफ जीऊंगी, मौज करूंगी, कुछ नहीं. ट्रैवल कर रही थी, खूब पैसे उड़ाए, खूब कमाए, ऑटो लाए. मेरा सीए भी बहुत बोलता था ये क्या करती है लड़की. बट देन यस व्हेन कोविड हिट, ओह माय गॉड, दैट वाज द worst phase. Yeah. Like क्या worst हुआ आपके साथ उसमें? Oh my god. I mean, of course, like I was having fun and all that.
everything was here Yeah. and then it went down. Drastically? Yeah, for me though it was very bad. Okay. But yeah, Moj and all were there, so I was getting paid. मतलब, Hmm. I can say it, 1 lakh rupees मिल रहा था मुझे Hmm. per month. So that was a good amount. Hmm. और अब घर पे ही रह रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, जो भी है. And yeah, so फिर आपने कोविड के बाद क्या सोचा, कैसे करना है, हाउ टू टेक इट फ्रॉम देयर? भाई सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया था. My dad was living in Gwalior with my brother. Me and my mom were living here because obviously I used to work here and all that. We have another home there. तो वहाँ पे वो लोग रह रहे थे और हम यहाँ पे रह रहे थे. My mom got really ill. Okay. So my dad is extremely protective about the family. So he said, no, I don't care. You guys come here. Okay. यार कोविड में तो it was just too much. Too much. तो फिर मैं I was like, oh shit, now what am I supposed to do? हाँ, और मैंने इतना दूर ड्राइव भी नहीं किया था, मेरे भाई को ड्राइव करना आता नहीं था. तो वो भी शायद बीच में आया हुआ था. आई कांट प्रोबेबली. मेरे डैड वहाँ पे अकेले थे. या माय डैड वाज अलोन देयर. ही वाज हियर. उसकी शायद छुट्टियां होंगी. तो मम्मा गॉट सिक. ही सेड नो, यू गाइस हैव टू कम. Okay. आई डोंट केयर. तो जैसे तैसे करके मैं चला के गाड़ी लेके गई. And for 1.5 years we were there. From blogging, obviously I was earning good money back then. So I had a lot of things set up. कपड़े उपड़े सब मैंने कर ही लेते थे. कमा रही थी मैं. It was good. I was paying GST, dude. So it was a good thing. Yeah. ठीक है. But COVID hit and the brand stopped. Okay. Yeah. Branded content completely stopped because I was in Gwalior. तो ब्रांड्स का यूजुअली क्या होता है, यू गो गेट, फैशन में ही होता है, यू गो गेट द आउटफिट सोर्स्ड, मेक द वीडियो. बहुत सारी चीजें बहुत अर्जेंट बेसिस पे भी हो रही होती है. अच्छा. तो ग्वालियर से मैं नहीं आ सकती ना, या DLF मॉल ऑफ नोएडा या फिर इंडियंस मॉल. आई कांट ट्रैवल इन अ डे एंड देन get the video done. So I missed out on so many opportunities because I was there. Oh, for an year? 1.5 years. Oh. Yeah, it was bad. It was very bad. So वही moral down हो गया कि अब मैं क्या करूँ. So only thing that I had was to create videos On Instagram from whatever you have. From whatever. But the best thing was शुरू से ही I was more into like designer collaborations. तो मैं designs को खूब promote करती हूँ, अभी भी करती हूँ. But the side thing about that is that they don't pay you to create videos. They work on a sourcing basis. You go source the clothes and I don't go, like I select and they send it to me. So that's barter. No, then I have to return it back. So what you get? Nothing, just the outfit to create the video. Yeah. Just the name of the brand? No, name तो मैं दे रही हूँ उनको. हाँ. But just the outfit to create. अच्छा. The content. Okay. तो ऐसे wardrobe में outfit नहीं है, outfit मिल गया create करने या के लिए. content creation के लिए I used to like source and all that. Yeah. Barter भी बहुत होता है. अभी तो मेरे को इतने gifts आते हैं. PR बहुत आते हैं. So that's a good thing. Like brands love you and they send you stuff. That's really nice. It's a perk of being an influencer. Creator. Yeah. I don't think I'm an influencer. I'm a creator. Yes, you are. No. You influence people. You are an influencer. No. I'm a creator. ये तो I don't know यार, ये word थोड़ा सा I feel like way too much. It's influencer हम कैसे हो सकते हैं यार? क्यों, हम influence कर रहे हैं ना? But नहीं, influencer तो शाहरुख खान है. हम creator है. I just love the way he speaks, the morals. Oh, so good. Yeah, no, anyway, so yeah, coming back to you. Designer वाला होता था, but हाँ वो थोड़ा सा मतलब बहुत, अगर बजट भी होते थे काफी कम होते थे. तो फिर मैं कर लेती थी क्योंकि वहाँ तो मैं क्या ही करती. And they were kind enough to send me those clothes to Gwalior. भाई भेजते थे मुझे. So I was like, चल यार वो ना यही करते हैं, देखते हैं कितना करते. तो तब ना बहुत ट्रेंड चला था get ready videos. Yeah, get ready with me. Get ready with me videos. बहुत चला था. Yeah. I hopped on that trend. Okay. And that's where I started doing सारी videos. मैंने इतना shabby एक video बनाया था, इतना गंदा. खुद ही को रोस्ट कर रहे हो? इतना मतलब it is actually pathetic. I look so bad in that video. पता नहीं मैं क्या कुछ भी लपेट के मैंने ऐसे. वो आपके initial days की बात है ना? I think it reel आया. मैं ना वो ये I'm very opportunistic. I don't, मेरे को अगर opportunity दिख रही है तो मैं I'll grab it. Okay. I don't let it go. तो रील आया ना, वो सब बंद हो गया. टिकटॉक मौज वॉज सब बंद हो गया था. हाँ. रील आया तो आई थॉट कि बहन या तो तू वीडियो बना या फिर तू क्रिएटर मत बन. अब अगर डरेगी तो गई. दो ही ऑप्शन है, करो या मरो. हाँ,
या तो तू कर ले या फिर छोड़ दे, जॉब कर। तो इट वाज रियली टफ टू बी ऑनेस्ट, बहुत टफ था। एक साल वहां पे रहे, वो टफ होगा ना, जब इधर आ गए वापस तो फिर यहाँ तो फिर तो अपन तो किंग है, बट लाइक इन द सेंस आई मीन कि व्हेन आई वाज देयर, वो वीडियोस का सिलसिला तो वहीं से स्टार्ट हुआ, ग्वालियर से ही बनाना, क्योंकि मेकअप आता तो था मुझे, बट आई वाज नॉट too much interested into making makeup content because I was more into like fashion and all that. Then I understood, ऐसी randomly my mom said, again मम्मी की बात सुन लिया करो बच्चों, क्योंकि मम्मी बोल जाती हैं कुछ अच्छी चीजें। My mom said कि मोना I think you should make a साड़ी वीडियो। Okay. I said okay, मेरे को तो आता ही नहीं है बांधना, मैं क्या साड़ी वीडियो बनाऊंगी। I did. Okay. That shabby video I'm talking about. You won't believe it. It got viral in a day. I got 5 million views on that reel. Wow. मैंने वो blow up पहली बार देखा था, मेरी फट गई। ये क्या हो रहा है? And then of course like with going viral now, तो I'm thick skinned. I don't care. I don't even look in the comments now. Yeah. I don't even see the views anymore. Yeah. Of course कभी-कभी अगर कम आते तो मुझे अरे क्यों कम आ गया? But तब ना ऐसे लग रहा था, What is this life? You are मेरे को एक ही वीडियो से भाई वो ना तू तो फेमस हो गई। तब that was a kick कि मतलब लोगों को पसंद आया कि मैंने क्या किया। Of course उसके नीचे मेरी IGTV वीडियोस भी वायरल हुई थी पहले, बट इतना नहीं हुआ था। Million is something else. 5 million? Million, yeah, get it. 5 million people saw my saw video. your video. They are actually engaging, commenting. बहुत random stuff भी बोला लोगों ने, तब मुझे पता लगा exactly hate comment क्या होता है। I felt so bad. फिर वही मेरे भाई को भी मिलता है, but my brother and I are very tight. So is my like everyone in the family, but my brother and I like friends, best friends. तो कुछ भी होता था ना, I used to tell him कि यार मेरे को ना ऐसे लग रहा है क्या, and he consumes a lot of like YouTubers का content. Okay. I don't consume content at all. Not even मैं बनाते हो? मैं सिर्फ क्रिएट करती हूँ। Oh wow. यार अगर मैं कंज्यूम करने लगी तो क्रिएट कौन करेगा? Honest creator. Yeah, I don't consume content. I can't. So trends वगैरह कैसे पता चलते हैं फिर? मेरी मैनेजर वो तो उससे पहले she's on it. यार सब तो रील्स तो आप देखते हो, बट आई डोंट कंज्यूम कि 2 घंटा बैठ के मैं रील्स देख रही हूँ, वो नहीं। रिसर्च नहीं करते हो कि ये बनाना चाहिए? रिसर्च हाँ, क्योंकि ये साड़ी वाला तो मेरे मतलब वर्ड ऑफ माउथ तो हमें पता लग ही जाता है, जैसे किसी ने कुछ बता दिया। चैट जीपीटी आया था जब, तो मेरे भाई ने बोला तू चैट जीपीटी के साथ कुछ बना ले, बट मुझे नहीं समझ आया तो मैंने नहीं किया। मैं ये बता रही हूँ कि प्रोसेस क्या होता है। अगर मेरी वो साड़ी वीडियो वायरल नहीं होती तो मैं आज साड़ी का कंटेंट नहीं बना रही होती। एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे साड़ी का एस भी नहीं पता था। करेक्ट, ठीक है। एंड मी 20 something back in the days I was like I had no idea how to make drape a sari. मुझे कुछ नहीं आइडिया था कि ये क्या चीज है, कैसे करना है, whatever. मैंने एक मम्मा की साड़ी ऐसी ड्रेप करी, वो वायरल हो गई, जो भी था। फिर मेरे को था कि नहीं भाई मुझे नहीं बनाना साड़ी कंटेंट। ओके। आफ्टर कितनी साड़ीज पहन ली? वही बनाने के बाद मैं नहीं, अब तो मैं फेमस हो गई। मैंने तो ये सोचा था अब तो मैं फेमस हो गई, अब मैं नहीं बना रही, अब तो लोग वीडियोस में व्यूज देंगे, बट ऐसा होता नहीं है। हाँ, ऐसे नहीं होता। I switched my content. I was like I'm more into like western, you know, that luxe thing. तो मैं वही करूँगी, but वो चला नहीं। And I used to get so frustrated, and I used to make videos on a camera. Okay. That is also a thing, by the way. कैमरा खुद ही लिया था आपने? हाँ, मैंने बताया ना पहले तो बहुत अच्छा कर रही थी ना, कोविड में तो मेरा थोड़ा सा डामाडोल हो गया। या तो वो कैमरे से मैं वीडियो बना रही थी, लेकिन I feel now especially make content from phone that does really good. Of course किसी का कैमरे का कंटेंट बहुत अच्छा चलता है, but in my opinion I feel like फोन is good. हाँ, फोन का बहुत ही अच्छा आप कर सकते हो, फोन से ज्यादा व्यूज भी ज्यादा आते हैं उसमें। ऐसा? Yeah. So for some reason somehow people feel connected to it's very real, है ना? कैमरा थोड़ा कैमराइश हो जाता है, कैमरा थोड़ा एडिश हो जाता है, एड लगता है वो। ओके। तो फॉर 1.5 year मैं तो उधर वही बना रही, क्योंकि मेरा सेटअप बहुत अच्छा नहीं था उधर। द लाइक ऑफ कोर्स आई वाज लिविंग इन दैट हाउस। यहाँ पे मेरा प्रॉपर, मैं दिल्ली में सेटअप सब करा हुआ था, कोविड में क्या सेटअप बनाऊंगी मैं। तो मैंने एक ऐसे पीछे पर्दा लगा दिया था, एंड वहीं पे मैं शूट करती थी अकेले रूम में। So yeah, I did that for good 1.5 years. I used to get decent views, 100 के आ रहे थे, किसी में 50 आ रहे थे, क्या हो रहा था। Oh my God! Then again I did another mistake in my life, जो मैं हमेशा करती रहती हूँ, इधर-उधर whatever. तो वो हुआ, मेरे views बहुत अच्छे आ रहे थे, I was getting good brand deals. Cut to
Me coming here in Delhi again was a mistake. No, that was not a Yeah. mistake. I did something Terrible. Yeah, I think so. I shouldn't have. मतलब कर लिया, अच्छा किया, पैसे कमाए मैंने बहुत. But I neglected Instagram and YouTube. Then what happened? I came here. वही मेरे को brand collab के लिए मैं आई थी. फिर मैंने पापा को बोल दिया था कि अब मैं वाले वापस नहीं जाऊंगी. तो everybody shifted again here. My dad also came here Okay. for good 1 year. तो यहाँ पे आके again I started making videos. But this time I hired some. नहीं, हाँ, तो मैं आई थी collaboration की वजह से कि मेरा बहुत सारा collaboration pending है. तो मैं इसलिए आई थी कि मैं collab करूंगी and then I'll figure it out. Okay. Then soon after, I got this contract for lives. Live जाना है Instagram पे. No, on another platform. E-commerce का platform था. Okay. Yeah, I don't want to name it, but it's fine. It was with Myntra. Okay. ठीक है. तो उसमें मेरा नहीं, पहले Reposo का फिर start किया मैंने lives. I didn't. मतलब it was, I think, not for me. Then soon after another brand reached out, Myntra के साथ I started working. But lives मेरे एक दिन में 3 भी हो रहे थे. Okay. और उसमें process ये होता था कि अगर 1 घंटे का live है for example, वैसे 45 minutes का होता था, but being me, I used to stretch it for. Yeah. Because I feel like if you are working with a brand and you genuinely want to work with them and you like the brand, you should always over deliver. Okay. हाँ, मेरे को ये लगता है. एंड कोई लोग होते हैं ना कि नहीं भाई मैं तो इतना चार्ज कर रही हूँ, मैं इतना ही दूंगी. नहीं यार, कर दो ना थोड़ा सा, और क्या हो जाएगा. तो मैं हमेशा 1 घंटा कर लेती थी उसको 15 मिनट. You were supposed to give fashion advice over there? No, so हाँ, फैशन भी मेकअप भी करते थे हम लोग. बट वही होता था कि ना अगर 1 घंटे का हमारा लाइव है, उससे पहले आधा घंटे पहले ड्राई रन होता था. ड्राई रन तो ड्राई रन में क्या होता है, जैसे इक्विपमेंट्स है कोई भी, वो चेक होती थी, इंटरनेट कनेक्शन चेक होता था. तो उसमें इतना ज्यादा टाइम लगता था बिकॉज फॉर दैट. और कई बार ड्राई रन में कैंसिल हो जाता था क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं होता था. Okay. तो ये सारी चीजें होती थी. एंड आई डिड दैट फॉर गुड 1 year. Okay. तो वो मेरा लाइव्स का इतना ज्यादा होने लग गया था बिकॉज that was all paid and that was all branded content. So I completely stopped doing my organic Instagram content. Because you're not getting time. Yeah, I was not getting time and all I was doing was doing lives and minting money. Okay. तो मतलब हर चीज को आपको थोड़ा सा आई थिंक बैलेंस करना चाहिए. या तो मुझे ये करना चाहिए था कि मैं उनको बोलूं कि मुझे अब इस दिन दो, बट तब यार वो मजा आ रहा था. लाइक लाइव करने में बहुत मजा आ रहा था बिकॉज आई यूज्ड टू गेट लाइक वेरी गुड एंगेजमेंट. प्लस एक दिन में 3 लाइव्स हो रही है, तो आई वाज मेकिंग गुड मनी. प्रोडक्ट्स, ये वो सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था. बट देन इट स्टॉप्ड. या ओके. अगेन वही फिर कि अब मैं क्या करूं यार, अब तो गड़बड़ हो गई. और 1 साल तक कुछ किया नहीं. तो फिर वो थोड़ा सा मुश्किल वहां पे आया कि भाई अब तो मतलब फुल ऑन प्रॉब्लम हो गई है, अब मैं क्या करूं. और फॉलोअर्स भी नहीं बढ़ रहे थे, वही 200-250 ऐसा कुछ हुआ था. एंड देन good 1 month I think I took a break. I was like I'll figure it out. I कि what to do. Time now. क्योंकि मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है. To sustain in this industry, you should know certain things कि किस तरीके से मैं आगे बढ़ूं तो मुझे काम मिलेगा, या मैं क्या करूं कि मुझे एटलीस्ट लोग पहचाने. है ना. दोस्तों में भी लोग मुझे जानते थे जस्ट बिकॉज कि हाँ ये फोटोज डालती है, इनके आउटफिट्स पसंद है, बट देयर वाज नो कनेक्शन विद द ऑडियंस एज सच. दे यूज्ड टू नो मी कि हाँ ये कौन है. दूर से जानते थे. ऑफ कोर्स वायरल हो जाती है फोटोज इधर उधर, तो पता तो था ही. और रील का वो जो मैंने पहले किया था, लोग तो जानने लग गए थे. बट आई कंप्लीटली स्टॉप दैट साड़ी थिंग. I was like, नहीं मैंने नहीं करना है. But then again, my mom. Yeah. She suggested कि Mona, I think you should do sari videos because that is something people really like and enjoy. So start with that. Maybe तो वही मैं कह रही हूँ कि अगर कभी भी डाउन फेज आता है ना, you should be surrounded with people who uplift you. तो वैसे लोग होने चाहिए आसपास. Uplift you and give you great guidance. हाँ. राइट भी नहीं, अगर बस खराब ना बोले. अगर आप ऑलरेडी नेगेटिव हो, आपको बोलते नहीं तेरे से तो कुछ नहीं हो पाएगा, छोड़. तो वो ऑलरेडी सब ना डाउन. हाँ 100%. तो वही वाला एक सीन आई थिंक विद मी इज दैट माय पेरेंट्स आर माय बैकबोन. ऑफ कोर्स आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, दे आर लाइक सो गुड. जब भी मेरा कुछ डाउन फेज आता है, ऑलवेज शेयर विद देम. एंड माय ब्रदर, ही इज तो लाइक सुपर नाइस.
always uplifting Friendly, me. हाँ yeah. हाँ हमेशा कि कुछ भी प्रॉब्लम आती he knows and always proud कि कुछ भी बड़ा हो रहा होता है he is the first one to celebrate things for me. मैं इतना celebration में मैं नहीं believe करती. Okay. मुझे लगता है ठीक है ये हो गया चलो आगे बढ़ते हैं. I'm always this. But virality कब मुझे होना था या फिर when I wanted to be that person Yeah, viral. वो आया after this whole thing went down, the live thing. I hired someone. Funnily, I got such an amazing person. She flew down from Odisha to Delhi. She was living here alone. She assisted me for 1.5 years. Within 1.5 years, we've crossed 1 million subscribers on YouTube. Okay. You And- hired her as a manager or a No, PR? as an assistant. Just to assistant. help me with the shoot. Okay. And we crossed 500K on Instagram. Wow. Yeah. And yeah, that's basically That was the point. yeah, You know. but it was rigorous working. Like वो एक मतलब 6 महीना तो मुझे समझने में ही लगा कि भाई मैं ऐसा क्या डालूं कि लोगों को पसंद आए. तो हम फोन कंटेंट कर रहे थे, बाहर जाके शूट कर रहे थे गर्मी में, ये वो रोज बाहर जाते थे, नया शूट करते थे, बट वो नहीं पसंद आ रहा था लोगों को. People were rejecting it. Then again I started with those get ready videos, but then it was another form of get ready videos. फिर वहां से शुरू हुआ साड़ी का बहुत कंटेंट किया मैंने पूरा वो फेस्टिव सीजन लास्ट ईयर. वहां से my profile picked up. Okay. I still remember I went to Bali with my friends. मैंने कहा एक लास्ट शॉट दे के देखती हूँ इसको, ये गेट रेडी को. तो वो जो पहली रील थी जो मैंने बाली की डाली थी यहाँ पे, इट रीच्ड अराउंड 70,000 पीपल. दैट वाज टू मच फॉर मी कि चल यार कुछ तो दिख रहा है मुझे. फिर धीरे धीरे आई स्टार्टेड अगेन वही साड़ी वाला कंटेंट, क्योंकि साड़ी इज मासी, लेट्स बी ऑनेस्ट. पीपल लव टू वेयर साड़ीज. Sari is sexy. हाँ, साड़ी इज ब्यूटीफुल. Yeah. एंड I used to come up with different kind of styling ideas, not like कि बस पहन के दिखा दिया. हाँ. I used to like color coordinated, तो लोग उस चीज पे कमेंट करने लगते थे, दीदी आपके पास ये सेम इयरिंग कैसे आ जाता है. या फिर they used to like obviously screenshot it. और इतने लोगों ने मेरी वीडियोस चोरी करी है. Like there were I think sellers who used to just steal my video and put it out. किसी भी मेरे शक्ल भी काट देते थे, साड़ी का कलर चेंज करके वो करते. तो that's when I understood कि yes, like now is something that okay, this works like that. Yeah. फिर धीरे धीरे मुझे समझने लगा. फिर वो ये कि virality यार, virality does not mean that you'll get brands, but virality means अगर उन 10 मिलियन भी, सॉरी 10 मिलियन थोड़ा ज्यादा बड़ा नंबर हो गया, 100K लोगों ने भी देखा है, उसमें से अगर 5 लोग भी तुम्हें पहचान गए ना, that is enough. वो तुमसे फिर कनेक्ट करने लग जाएंगे. They would want to know what you're doing. They would want to see the kind of videos that you make, and they'll wait कि मोना तुमने वीडियो क्यों नहीं डाली. वो सिर्फ तुम्हारी शक्ल देखने के लिए भी they'll wait. तो वो वाली ऑडियंस हमें चाहिए, कोर ऑडियंस. वो पहले होता था. Do you think अभी भी होता है? Yes, बिल्कुल होता है. इतने कंपटीशन में बिल्कुल होता है. With people like you have established community, maybe not new faces. I think there's always a place for people here. I don't think कि मैंने पहले कर लिया तो वो वाली बात हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है. आज भी क्रिएटर्स हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा फाड़ रहे हैं. एंड there are I'm seeing so many amazing new creators who are doing so good. It's crazy how they do these amazing videos. मैं खुद ही सोचती हूँ शायद मैं पीछे हो जा रही हूँ, बट यू नो आपको हमेशा which I learned वो लाइव वगैरह के साथ या फिर जो मेरे पहले क्रिएटर फ्रेंड्स थे जिन्होंने छोड़ दिया, is that if you want to be in this business you will always have to revolve और ट्रेंड के साथ आपको अपने आप को बदलना ही पड़ेगा. There's no other way. अगर मैं वही कहती ना नहीं मैं तो वीडियोस नहीं बनाने वाली क्योंकि मेरे को पिक्चर्स पसंद है, तो मेरा खत्म था सब कुछ. But don't you think going with this trend वाली thing is too taxing? It is darling, but there's no other way. But you have to follow. Yes. And also, you know, it takes a lot as an audience point of view. It takes a lot कि अपना मोबाइल उठाओ, मुझे आपकी वीडियो अच्छी लगी तो मैं आपको फॉलो करूँ. When everything is there on that reel, everything is there on fingertips, मैं फॉलो क्यों करूँगी, इतनी ज़हमत ही क्यों करूँगी. बट बहुत लोग नहीं करते ना. बहुत लोग नहीं करते. बट कई लोगों को तुम्हारा जो काम है, जैसे now people know me for sarees, right? So they would want traditional wear, let's say, Indian wear, festive wear, wedding, whatever. तो वो वाला जो एक नीश है, वो ऑडियंस मुझे इसलिए फॉलो करती है, या which I believe is that Mona will come up with something new
फॉर साड़ीज मुझे इतने रिक्वेस्ट आते थे, जैसे नवरात्रि का कंटेंट मुझे नहीं ही शूट करना था, बिकॉज आई एम अ बंगाली एंड Yeah. आई डिड अ लॉट ऑफ लाइक दुर्गा पूजा का कंटेंट अराउंड साड़ीज। तो मुझे, और मैंने ऑनेस्टली कोई सोर्सिंग भी नहीं करी थी एंड मेरे पास बैंडविड्थ भी नहीं था कि मैं कर पाऊँ, बट बिकॉज आई वाज गेटिंग दोज कमेंट्स ऑन माय रील या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स, जहाँ पे भी वो कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने वो वीडियो बनाए। क्यों? क्योंकि मैं अपने ऑडियंस की सुनती हूँ। Yeah, you're तो working for ये them. चीज़ है, अगर आपके पास 10 लोग भी हैं, अगर 10 लोग भी आपकी वीडियो देख रहे हैं, उसमें से 2 लोग आपको बोल रहे हैं ना कि आरती गिव मी योर मेकअप का ट्यूटोरियल, यू शुड डू इट, Yeah. बिकॉज उससे क्या होता है, वो कनेक्ट बन गया आपका वहां पे। उन तो लोगों आप से। जितना, हाँ, आप अपनी ऑडियंस की सुनो। Do you think कि यहाँ पे loyal audience अभी भी है? बिल्कुल है। You think that? I 100% believe it. Having said that, what are your take on buying bot followers? I think it's a very bad practice to follow. But people do that. And creators do that. Yeah, I know. Yeah, there are some people Uh, who does that. uh, But is it a good practice? no. No. Does it help? I don't think so. हाँ, long run में तो नहीं help करता है। Any which ways, like fake PR करने से भी I guess थोड़ा सा हाँ, हो You- सकता है you get a uplifting। push, you get a kick. Yeah, uplifting तो होती है। देखो, PR तो obviously is paid Yeah, publicity yeah, and it definitely helps yeah. in brand building, but bot followers और ये सब तो is a very bad practice to follow. Okay. Yeah, क्योंकि long run में फायदा ही नहीं है। लोग आपको जानते ही नहीं, तो आपको काम कैसे मिलेगा? बट वो नंबर के साथ, और अगर हम बैड पीआर करेंगे तो मे बी धीरे धीरे I करके have no idea. I don't know. you don't follow, neither do you No. follow nor do you have any idea. No, I think it's a bad thing Bad to. thing, bad. क्योंकि स्पैम, इंस्टाग्राम खुद बोलता है कि स्पैम अकाउंट्स जो है, जितने ज़्यादा आपके फॉलोइंग काउंट में बढ़ जाएंगे, उतनी आपकी वो रीच भी डाउन करता है। इंस्टाग्राम के कई सारे अकाउंट्स भी है जो इंस्टाग्राम ने स्पेशली क्रिएटर्स के लिए बनाया हुआ है, जैसे कि क्रिएटर्स, आई होप ब्रॉडकास्ट चैनल बनाया हुआ है नो, उन्होंने। देयर इज अनदर पेज कॉल्ड क्रिएटर्स एंड born on Instagram करके भी हाँ हाँ page हाँ है। हाँ हाँ So है। they always tell you to not do these things because it is it's not a nice practice to follow. And do you have that stress of content बना लिया, edit कर लिया, now after posting comes Yes. कितने बजे डालना है? ना कितने बजे वाला तो मेरा आई थिंक वो फेज चला गया है। ये फेज होता है। या क्योंकि जब मुझे, मतलब वैसे था कि मुझे नंबर्स चाहिए, तो मैं हर रोज सुबह 11 बजे डालती थी एवरी सिंगल डे। एक रील रोज। या फॉर गुड 1.5 years I've done that and मुझे किसी भी तरीके से बस मुझे वायरल होना था। मुझे ये था कि लोग मुझे पहचाने। तो वो कैसे हो सकता है यार? वो बॉट से नहीं हो सकता। Do you have to मेरे work? पास तो भाई इतना पैसा भी नहीं है कि मैं PR खरीद के करा लूं, नहीं हो सकता, वो मेरे से तो नहीं पॉसिबल था। ऑल आई कुड डू इज आई कुड पुट इन माय वर्क एंड देन प्रे कि भगवान प्लीज मेरी आज वायरल हो जाए, कर दे, आज वायरल हो जाए। मैं और मेरी असिस्टेंट हम बैठे रहते थे। she used to come every day at 12 and she used to like ask me, दीदी आपने वीडियो डाल दी है? तो हम वही रोज 11 बजे मेरी वीडियो चले जाते, then used to see how is the reel performing, Every hour? first few I think minutes like 10-20 minutes उतना देखते थे and that's it। फिर जब वो रूटीन में आने लगे then we've completely stopped, क्योंकि हमें बाकी के काम भी करने होते थे। like we used to film and all that, edit, Scripting, हाँ, बहुत कुछ होता है। brainstorming, हाँ। True। तो फिर नहीं, वो धीरे धीरे ना, वो शुरू का फेज होता है जब आपको लगता है यार व्यूज नहीं आ रहे, एवरी मिनट यू आर चेकिंग, बट नाउ आई डोंट इवन सी कि क्या हो रहा है, क्या नहीं, नहीं हो अब रहा मैं नहीं है, देखती। डाल दिया, छोड़ दिया। हाँ, अगर वायरल हो जाती है तो मुझे पता लगता है अच्छा ठीक है, यहाँ से फॉलोअर्स आ रहे हैं या फिर इसकी व्यूज बढ़ गए हैं, या फिर और अभी तो एक और भी बहुत अच्छी चीज़ है, इंस्टाग्राम इज लाइक अमेजिंग राइट नाउ, क्योंकि वो आपकी वीडियोस फेसबुक पे भी पुश करता है। हाँ, क्रॉस पोस्टिंग आई डोंट डू, आई पर्सनली डोंट अंडरस्टैंड दैट बिट ऑफ इट। मैं अलग से डालती हूँ, थ्रेड्स पे भी डालती हूँ, फेसबुक पे भी मैं ट्राई कर रही हूँ, बट अभी आजकल नहीं कर पा रही हूँ। आई एम ऑन स्नैपचैट एज वेल। बट व्हाई नॉट क्रॉस पोस्टिंग? मतलब अगर आप कुछ इंस्टाग्राम पे डालोगे वो अपने आप थ्रेड्स पे डाल जाएगा। व्हाई टू टेक एन एक्स्ट्रा? द रील इज नॉट क्रॉस पोस्टेड ऑन थ्रेड्स ना, हाँ, Yeah. वो तो यू हैव टू पुट इट अनदर लिंक, या फिर मे बी यू कैन यू टॉकिंग अबाउट फेसबुक? या यार आई डोंट नो, आई डोंट नो,
I'm not sure about that. You don't do it. I recently, I mean, day before yesterday, we were at the Meta event. Hmm. तो वहाँ पे हमें उन्होंने बताया कि now they are promoting WhatsApp channels as well. Okay. So yeah, if anyone wants to be a creator, you should be everywhere. जितना content बना रहे हो हर जगह डालो. WhatsApp चैनल भी बना लो, Yes, podcast मैंने चैनल already बना बना लो. रखा था. They were amazed कि I had that. I was like, yeah, I'm a creator, not an influencer. So I know my drill. Yeah. So how was your experience at Meta event? So good, so good. उससे पहले I was invited by Google also on the YouTube Yeah, we saw office. post. Oh, you did? Yeah. That's sweet. तो it's crazy. मैं वही कह रही हूँ ना, मुझे खुद नहीं पता था कि मैं ये कर सकती हूँ and I can actually be with the creators जो YouTube पे मचा रहे हैं and वो उन्होंने मुझे बताया कि that I am under 50 lifestyle creators in India. Wow. That is Craजी. big. Yeah. मुझे लगा हाँ मतलब ये गलती से तो नहीं हो गया. ठीक है. कौन कौन से YouTube creators से मिले आप? I met this क्या नाम है यार उनका नाम नाम Quirky Miss. Do you know? She's amazing. I Okay. love her. I really like the journey she has. Plus, of course, I had my friends there. Sana se मैं मिली and who else? Sonia. Do you know? No. These are all fashion पहले वाले creators. Okay, so Yeah. Sonia full name? Garg. She's pretty Okay. good. Okay. Yeah, I like what she does. She does these really nice those DIY का कुछ करते हैं. बहुत अच्छा लगता है मुझे. So it was a nice experience at Meta So good. and at Google also. So good. Such amazing people. पहला event था आपका Meta और Google के साथ? Meta के साथ पहला था, Google के साथ it was second. Okay. Yeah. Any other insider tip that you got from Meta? Insider tip would be एक तो see take it as a मैं creators के लिए specially बता रही हूँ. मेटा को आपको एज अ टूल लेना है. जी. मेटा कह रही हूँ सॉरी, इंस्टाग्राम को या फिर मेटा के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं. Yeah. ठीक है. इंस्टाग्राम पे उन्होंने वो कोई भी अगर नया फीचर लाते हैं ना, दे वांट यू टू यूज दोस फीचर्स. Okay. तो फिर आपकी जो प्रोफाइल है वो पुश होती है. रील्स से इतने लोग क्यों वायरल हुए? इसीलिए क्योंकि वो उनका नया प्रोडक्ट है. जितना आप क्रिएट करोगे उतना वो आपको पुश करेंगे. एंड ये भी है कि ऑफ कोर्स योर वीडियोस शुड बी नाइस. ऐसा नहीं है कि कुछ भी रैंडम डाल दोगे जो मैंने पहले किया था वैसे चल जाता है अभी. बट इम्पैक्टफुल वीडियोस बनाओ और वैल्यू ऐड करो. या वैल्यू एडिंग बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है. Okay, what do you think about SEO and hashtags? Are they dead? Well, I do use hashtags. I don't know if they are dead or not, but I definitely do use them. मैं YouTube पे भी यूज करती हूँ, मैं इंस्टा पे भी करती हूँ, बट 3-4 उससे ज्यादा नहीं. Decent 3-4. हाँ, जो मेरा कंटेंट जिससे रिलेटेड है मैं वो डालती हूँ. जस्ट मेरी एक प्रैक्टिस है जो मैं फॉलो कर रही हूँ. एंड आई थिंक मैं किसी भी मेरा कोई भी वीडियो नहीं होगा जिसमें मैंने नहीं डाला हुआ. 1-2 होगा शायद, बट आई फील लाइक वो ऐड ही करता है. डेड या नहीं आई एम नॉट श्योर बिकॉज ऑब्वियसली आई एम नॉट द क्रिएटर ऑफ इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब. बट यूट्यूब पे डेफिनेटली वर्क करता है बिकॉज वो आप जब भी टैप करते हो वो सारी सर्च में आ जाते हैं. तो बेस्ट प्रैक्टिस तो यही है कि डालो, बहुत सारा मत डालो, बट 2-3 यू शुड. एंड कीप योर कैप्शन वेरी लाइक उसका डिस्क्रिप्शन ठीक से लिखो. यस 100%. Okay, so in coming near future, what are your plans? Going ahead with content creation only or any brands coming up? That's a nice question. वो तो थोड़ा सा अभी चल रहा है side by side. I can say it. I'm working on my blouse collection. Wow. Yeah. थोड़ी सी उसकी चल रही है, cross checking चल रहा है. I've already made samples. I've started putting out videos also. थोड़ा बहुत people have started noticing कि where is this from, because my audience really like the sari and blouses. Traditional collection of yours. They love it. And I could see the gap कि जो मैं पहनती हूँ वो उनको नहीं मिल पा रहा था. क्योंकि I used to get those designer pieces. तो कई बार क्या होता है वो बनवा के दे देते हैं मुझे. तो मैं चाहती थी कि मैं अपना एक कलेक्शन लॉन्च करूँ. तो आई एम वर्किंग ऑन इट. इट्स नॉट लाइक देयर येट. आई एम जस्ट ट्राइंग टू बिल्ड इट, जस्ट फाइंडिंग द राइट फिट फॉर दैट ब्रांड. तो अभी चल रहा है धीरे धीरे. बट यस यार, कंटेंट क्रिएशन तो मैं लाइफ टाइम करोगे? I'm not sure. You're enjoying it, right? I'm loving it right now. Definitely. I love being in front of the videos. I love putting out those styling videos. अच्छा लगता है मुझे बहुत.
I like the money, and what else? Maybe पता नहीं, शायद मैं बीच में थोड़ा टाइम के लिए ब्रेक लूं या Okay. हाँ I can, but अभी I'm not sure. अभी तो मजा आ रहा है, जब तक मजा आ रहा है तब तक करूंगी. Any dream collaboration coming up? No dream collaborations as such. Anything जो बात चल रही हो in talk? ड्रीम तो नहीं है यार वो सब. ड्रीम तो है अपना like You've worked with almost every brand you'd ever dreamt of? yeah. I think. Almost every. हाँ. Even Okay. luxury also I did. Okay. Yeah, that's a good one actually. I was blown away when I got to know that I was invited for the Bulgari launch. Okay. Kareena was also there. So How was your it's great. experience at Very good. Lakme Fashion? Lakme Fashion Week. Yeah, it was fine for me because मेरे को ज़्यादा यार पता है क्या है, मैं इतना टाइम से ये कर रही हूँ ना. पहले Amazon Fashion Week होता था, तो हमें मतलब वही जो क्रिएटर्स थे उनको प्रेस पास मिलता था. तो 4-5 दिन जो भी फैशन वीक चल रहे होते थे, वी यूज्ड टू गेट दोज एक्सेस फॉर ऑल द डिजाइनर्स. सुबह से लेके शाम तक जितने भी शोज हो रहे हैं उनके मुझे एक्सेस मिलते थे. मुझे क्या, बहुत सारे और भी क्रिएटर्स थे जिनको मिलते थे, बट वो तब की बात है जब मैं छोटी थी थोड़ी सी. आई वाज इन माय 20s एंड आई वाज एंजॉयिंग द होल फैशन गिग एंड ऑल ऑफ दैट. So I used to literally take out days कि नहीं भाई ये तो मेरा blocked है, इसमें मैं और कुछ काम नहीं कर सकती. But now that I'm growing and वही वाली बात है कि अभी I've become so selective. So I was really fortunate, I would say, enough to get those really nice invites. So I went for Pankaj and Nidhi. They dressed me, so of course like it's good, yeah, it's good fun. But पुराने ज़्यादा लोग अभी आते नहीं है. So that's also a thing, and of course there are very good new creators, Gen Z creators भी बहुत सारे थे. So that was really nice to see because मैं जब भी उनको देख रही थी मुझे लगता था oh shit, I was also exactly like this. Yeah. I used to go to all the shows and do videos and all that jazz. So that was fun to watch. And then the next day I went for Tarun Tilani's show. And how was that it? was also really nice. Ranbir was there. So cute. You wanted to walk runway for them? Yeah. But अभी पता नहीं, ये है मेरा dream collaboration. This, like I would love to walk. Well, मैं ramp में walk कर चुकी हूँ बहुत बारी, but not like bigger big platform. designers, yes. Yeah, bigger platform पे I think ये हो जाए, क्या पता, you never know. है ना? Yeah. कि ये मुझे this यार पता है, हाँ ठीक है, collaborations, going viral, getting views, numbers, yada yada yada, everything is good. Getting PR बहुत अच्छी बात है, मजा आता है, चल रहा है, सब कुछ है. बट ये जिस दिन होगा ना, मैं तो ऐसे I'm like I think that will be the day when I'll be really happy. क्योंकि मेरे को होता नहीं है ये चीज. I just realized. Yeah. मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता. What kind of a person I am? Maybe क्या पता हो जाए. भगवान सुनो कर देना. चलो, we'll hop on to some games. Yeah, let's do that. So the game is 2 truths and 1 lie. You have to speak up 3 statements about you. Audience will guess which is which. 2 truth. बताना तो है ही नहीं कि truth कौन सा है और lie कौन सा है. 1 lie. I'm quitting blogging. 1. I'm married. 2. Well, ये थोड़ा सा opposite हो गया है ना. It's okay. Let it be. I'm Bengali. 3rd. Okay, so another game is influencer red flags. So I'll be speaking up a statement. You have to tell me, is it a red flag for you or not? अच्छा, for me, ठीक है. Yeah. An influencer who edits all their photos to an extreme level. Is there a neutral flag? No. Only red flag. Yeah, I mean... Have extremist editing. It's not even 2024. मतलब 2024 के लिए तो नहीं बनी है extreme editing, I guess. मैं तो बिल्कुल ही नहीं करती. मैं तो लाइट भी नहीं ठीक करती. मैं तो ऐसे डाल देती. See, so according to you, it should be a red flag. For them, I think it's fine. वो जो मर्जी करे, मैं नहीं करती. वो, but it's a red flag for you ना. If it comes to you, कोई बोले करने के लिए, तो you won't do it. कर दूंगी. But मुझे see honestly मेरे को कोई नहीं फर्क पड़ता कि सामने वाला क्या कर रहा है. मुझे बस ये फर्क पड़ता है मैं क्या कर रही हूँ. But you said ना, you won't sacrifice your ethos. Yeah, मैं नहीं करती. मैं तो अपनी वीडियोस भी नहीं एडिट करती. मतलब लाइट I don't edit. So बस it's a red flag. Okay, I'll take that answer.
Yeah, an influencer who promotes several competing brands at once. It's fine. It's fine. It's work. Yeah, it's money. An influencer who buys followers to boost their numbers. Oh god, red flag. A brand that asks for too many deliverables in exchange for free Red products. flag. Don't come to me. An influencer who frequently engages in online drama to get more attention. ये भी हो रहा है क्या? ये Don't you क्या हो know? रहा है इंडिया में? Don't you know? Or you won't tell. No, I don't know. Any online drama going on? Not with me, but Not with you, but with people. You have to be aware. क्या करूं मैं aware होके? कुछ नहीं होता. Gossip. नहीं चाहिए मुझे gossip. मैं हुई नहीं यार इन सब के लिए. मैं सिर्फ अपना काम करती हूँ, खाती पीती हूँ and that's it. सो जाती हूँ. It's zilch for you, nil. It's a nil for me. Like it's zero for me. An influencer who promotes a product they actually don't use or like. Again, no comments. Yeah, it's money. ठीक है. पैसा बोल रहा है. It's money. Yeah. So it's wrong with their audience now if they're promoting what they don't like. They actually don't like, they're promoting. वो तो फिर सेलिब्रिटीज भी करते हैं. अपनी अपनी व्यू पॉइंट की बात है. यार मेरे को तो लगता है देख अगर मतलब क्या बोलूं मैं. To be honest, I've also done that in the beginning for money. Okay. So किसी का क्या क्या ही काम कर रहा है. You never see अभी जैसे कोई कर रहा है 2-3 brands. You never know what kind of a background they are coming from. They need the money, so they are doing it. So you cannot comment, right? yeah, I think that would be rude of me to even say anything on that. Okay, so at last I would just want to ask you that what's that one piece of advice you would like to give to your audience or creators who are budding creators? ऑडियंस को तो ये बोलूंगी फॉलो कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, फॉलो कर लो यार. सब्सक्राइब कर लो. एंड बडिंग क्रिएटर्स के लिए बडिंग क्रिएटर्स भाई डोंट गिव अप. डोंट गिव अप. ये मतलब आई नो व्हाट यू सेड दैट यू नो कि बहुत सारे लोग आ गए हैं, बहुत सारे लोग चले भी गए हैं. हाँ, ये भी एक पॉइंट है. बहुत करेक्ट. सारे लोगों ने क्विट कर दिया. करेक्ट. इफ यू जेन्युइनली लाइक इट गो फॉर इट. डू इट. ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये बंदा भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है. एवरीबडी वांट्स टू बी एन इन्फ्लुएंसर नाउ. क्रिएटर. I don't want to be an influencer. But yeah, so having said that, I feel like if you really, first of all, don't do it for fame and money. Yeah. ये नहीं होता है ऐसे. It's hard work. Yeah. It's a lot of pain. मैं रोई भी हूँ बहुत बारी क्योंकि Yeah. views नहीं आ रहे. It takes a toll on your mental health. Definitely. And पहला तो अगर if you really like it, go for it. Do it. लेकिन अपनी जॉब छोड़ के नहीं करना है. दोस्तों ये नहीं करना. Because you need money for it. Second, don't give up. If you really like it, I'm sure कुछ ना कुछ होगा. God has a plan. Yeah, that's what. हर चीज में Yeah. कुछ ना कुछ हो जाता है. And what else? Be consistent. Be consistent. Yes. ये कैसे भूल सकते हैं? इसी से हुआ है मेरा सब कुछ. Consistent I've रहो. learned from you. हाँ नहीं consistent रहना बहुत जरूरी है. चाहे 2 views भी आ रहे हो कोई बात नहीं. आएंगे एक दिन 2 मिलियन भी आएंगे. बहुत easy है. ये मैं आज बोल पा रही हूँ क्योंकि मैंने देख लिया. वो जर्नी आपने गो थ्रू कर ली. हाँ बट अभी भी अगर मेरा कोई किसी में कम आता है, फील लाइक ओ व्हाट द हेल. बट अभी तो आई एम लाइक ठीक है यार कोई बात नहीं, हो जाएगा. मैं कर लूंगी इसको पिकअप. मैं कोई और वीडियो डालूंगी. इट विल बी अगेन बैलेंस. या ठीक है. एक वो वाला चीज है. एंड प्लीज सराउंड योरसेल्फ विद गुड पीपल who uplift you. जैसे my parents, obviously, friends, good you know, friends, brother, sister. yeah. और शेयर करो. और कम्युनिटी भी आपकी जैसे छोटे वाले creators what the hell, why am I talking like this? I'm like so bad with Hindi. Yeah, sorry. Micro creators Yeah. जो है उनको specially I would feel like I always feel कि आप लोगों की community होनी चाहिए when you guys actually help each other out. बहुत लोगों के पास resources नहीं होते हैं. तो एक बंदे के अगर पास है तो हेल्प करो. कंपटीशन नहीं है. ये खुद मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों बना रखी है कि और ये तो मेरी कंपटीशन है. नहीं है ब्रो. कंपटीशन तो है यार. ये पीयर प्रेशर नहीं लेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा. अपने आप से रखो ना कंपटीशन कि मेरा ये वीडियो अच्छा नहीं हुआ, ये मेरा बहुत गंदा परफॉर्म कर रहा है, इससे बेटर मैं कैसे कर सकती हूँ. ओके. ये होना चाहिए. दूसरे बंदे का कंपटीशन अगर लोगे जिंदगी में फिर कुछ नहीं हो सकता. Okay. Yeah, that's a point. I think that's Yeah. what I believe.
Thank you so much for being here, Of Mona. course. Thank you so much for such valuable insights. I hope aspiring creators will love it, and your audience will love it too. Yeah. They get to know about you. कभी बताया नहीं आपने? नहीं नहीं Yeah. बताया नहीं बताया. Thank you, so thank you much. so much for being a guest. Thank you. Baby. चाय पी लिया? ये वाली चाय तो नहीं पी सकते अब. Oh God. Done. सब बता दिया कच्चा चिट्ठा मैंने. Thank you again for joining us. And to all our listeners, please don't forget to follow us. We have got some more exciting guests and stories with us. So please stay tuned and follow us for more.